Hello everyone. This is a video which is long awaited. There were many students and many teachers who kept me on the tender hooks asking me this question that, sir, how do we remove the fear of maths? हमें maths से बहुत डर लगता है. So I'm going to use bilingual because a lot of all my videos were in English. So there were a section of students who could not understand English. So they said, sir, अगला video थोड़ा हिंदी भी use कर लेना so that we can understand. So I'm going to do a bilingual video today. So English में भी बताएंगे और हिंदी में भी बताएंगे. Although my Hindi is not very good, but I am making an attempt to speak in Hindi so that it's beneficial for all the students and the educators here. तो maths का fear कैसे remove करना है? How do we remove the fear of maths? So this video is all about, and this is I'm talking through my experience in the classroom. I have teaching experience of about 27 years now, and this is my insights. So maths का fear कैसे remove करना है? In our daily classes, we see there are a lot of students who have got this mindset कि maths मुश्किल है, maths नहीं होगा. तो इस वीडियो को जरूर देखें ताकि हो सकता है कि आप में कोई बदलाव आए. So this is a very humble and honest attempt on my part to do that. First thing is that हमें ये लगना चाहिए ये हमसे होगा. You can do it. This is very important. अगर आप पहले ही एक mental block रखते हो कि नहीं होगा, maths मुश्किल है. See, this is what has happened. Generations have passed this. एक मैसेज मिल गया है कि मैथ्स टफ है और ये टफ है, बस आप अटेम्प्ट नहीं करते और उससे पहले ही हमने डिक्लेयर कर दिया मैथ्स इज अ टफ सब्जेक्ट. ये नहीं होना चाहिए. सो फर्स्ट थिंग इज दैट माइंडसेट को चेंज करना है. वी हैव टू रिमेन पॉजिटिव. हमसे होगा. यू कैन डू इट. सो हाउ वी कैन डू इट? सबसे पहले ये फियर कैसा है? आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ द फियर. हु गेव यू दिस फियर? Okay, it's probably a parent, it's probably some teacher, it's probably a friend, it's probably a relative, it's probably some social media post. वो fear का जो reason है कहाँ से आया? Or it may be self experience. एक टेस्ट में फेल हो गए. We have innumerable examples of people who have failed. ठीक है, हमने एक क्लास में फेल हो गए, कुछ नहीं होता इससे. एक टेस्ट में फेल हो गया, इससे कुछ नहीं होता. फेलियर से बाहर निकल के जब हम अच्छा स्कोर करेंगे, that is a learning experience. There are very, very few individuals who are exceptionally brilliant, who have scored exceptionally good marks throughout their school life and college life. I, being a maths teacher, ऐसे बहुत से classes हुए हैं where I have got very low marks, but ultimately in life that doesn't count. Those one or two tests where you have got bad marks or failed doesn't count at all. तो हमें क्या है, सोर्स जो फियर का सोर्स है वो हमें निकालना है. We have to be in the company of people who are going to motivate you and inspire you. And how are we going to do that? I'm just explaining briefly. So once we say that I can do it and you are ready, देखो आप घोड़े को पानी तक ला सकते हो, पानी पिला नहीं सकते जबरदस्ती. So same with students. The student can be motivated, inspired. आपको खुद ये सोचना है कि मुझे करना है. So if you decide that you want to do it, then nobody can stop you. You will be able to achieve it. तो आपने बार बार टीचर से सबसे सुना होगा प्रैक्टिस रेगुलरली. इसके बिना तो कोई चारा नहीं है. मैथ्स इज अ सब्जेक्ट वेयर यू हैव टू प्रैक्टिस डेली. आपको अगर आपने 80-20 प्रिंसिपल वाला वीडियो मेरा नहीं सुना है तो प्लीज सुन लीजिए. उसमें मैंने टेक्निक्स बताए हैं आपको कि कैसे आप अपने मिनिमम टाइम दैट इज 3 आवर्स से आप बहुत बड़ा रिजल्ट 80% एंड अबव अचीव कर सकते हो. सो प्रैक्टिस हैज टू बी देयर. प्रैक्टिस के बिना तो कोई जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे आप कोई भी फील्ड में, चाहे आप म्यूजिशियन हो, आर्टिस्ट हो, यू हैव टू प्रैक्टिस. द बिग म्यूजिशियंस आप देखते हैं, इंटरव्यू देखते होंगे म्यूजिशियंस या आर्टिस्ट का, वो अभी भी अपना रियाज राजी दे कंटिन्यू दैट. अपना जो रियाज है वो जारी रखते हैं. सो व्हाई? बिकॉज, और ये नहीं है कि अब मैं बहुत बड़ा सिंगर बन गया हूँ, बहुत बड़ा आर्टिस्ट हो, अब हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे. ऐसे कभी नहीं होता. सो द प्रैक्टिस हैज टू बी देयर. कितना बड़ा मैजिशियन हो, कितना भी कोई भी आर्टिस्ट हो, कितना भी एकेडमिशियन हो, the learning never stops. Learning is till death. So practice तो करना ही है. तो अगर आप प्रैक्टिस के लिए रेडी नहीं हो तो फिर आपके लिए ये वीडियो व्यर्थ है. इट हैज नो मीनिंग एट ऑल. सो व्हाट यू नीड टू डू इज प्रैक्टिस रेगुलरली. कैसे करना है, क्या करना है? बेसिक से स्टार्ट करना है. अब कई बच्चे हैं हमारे क्लासेस में, सीधा आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, बड़े बड़े हाई फाई बुक्स हैं तो वो उठा लेते हैं, एग्जाम्पलर से स्टार्ट कर देते हैं और फिर वो डिस्करेज हो जाते हैं क्यों नहीं हो पाता. स्टार्ट विद बेसिक्स. हमारी एनसीईआरटी बुक्स ऐसी बनाई गई हैं, एक उसका एक ऑर्डर है कि बेसिक्स है, स्टार्टिंग विद बेसिक्स. जब हमारा एक्सरसाइज 1 के बाद हम 2 जाएंगे, 2 के बाद 3 जाएंगे, फिर हम एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक से करेंगे. तो फिर दैट इज द रियल प्रोसीजर. नॉट दैट
आपको ये माइंडसेट है कि ये तो बहुत ही इजी है तो हम ये नहीं करेंगे, ये दिस इज अ रॉन्ग थिंग दैट कैन एनीबडी कैन डू। ऑलवेज स्टार्ट विद बेसिक्स। कई बार ऐसे भी आता है हमने सवाल जो है बेसिक क्वेश्चंस पेपर में दे दिया है एंड वी सी दैट वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आर आल्सो नॉट एबल टू डू दोस बेसिक क्वेश्चंस, और बड़ा अजीब सा बहाना मार देते हैं कि सर हम तो बैठ के ये वाला रेफरेंस बुक्स ए बी सी कर रहे थे या एक्स वाई जेड कर रहे थे, उसमें से तो कुछ आया ही नहीं, आपने इतने सिंपल दे दिए वो हमसे हो नहीं पाया। सो यू सी द एक्सक्यूज इज वेरी लेम। जब तक आप बेसिक्स नहीं करोगे आप आगे एडवांस तब करोगे। एडवांस करके बेसिक सम ना होना इज यू नो इट्स अ हैंडीकैप फॉर यू। दैट्स अ वेरी लेम एक्सक्यूज। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स हमारे। अगर हमारा बेसिक सही है, पहले जमाने में रेफरेंस बुक्स होते नहीं थे। व्हेन वी वर किड्स वी यूज्ड टू हैव ओनली वन रेफरेंस बुक एंड दैट आल्सो many of us didn't use. We only referred NCERT and we got, by the grace of God, very good marks. हमारे जितने भी फ्रेंड सर्कल में सबके अच्छे मार्क्स इसीलिए आते थे बिकॉज वी यूज टू स्टडी व्हाट इज टॉट इन द क्लास, एंड ये ट्यूशन का और जो ऑनलाइन रिसोर्सेज एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं था। आई एम टॉकिंग अबाउट लेट्स से 25-30 years back. नाउ देयर इज अ प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आपके पास इतनी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज है, इतना रिसोर्स मटेरियल है, इतना एक्स्ट्रा हेल्प आपको मिलता है। In spite of that, you are fearing maths. Why? Because you're not starting with the basics. अब basics से start करेंगे, आपको धीरे धीरे प्रोग्रेस दिखेगा। इट्स लाइक अ सीड, यू नो, जब आप सीड प्लांट करते हो इमीडिएटली रिजल्ट्स नहीं आते हैं। डोंट एक्सपेक्ट मिरेकल्स एंड मैजिक। आपको क्या करना है, एक सीड को पहले पानी देना है, उसको मैन्योरिंग करना है, आपको डिगिंग करना है। ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी देयर, देन ओनली द प्रोग्रेस स्टार्ट। और ये विजिबल आएगा, आप विजिबिलिटी आएगी 6 महीने 7 महीने 8 महीने में। what is going to happen, your progress will be visible, right? एक प्रॉब्लम जैसे आप बेसिक्स हो गया, टफ प्रॉब्लम आ गया, टफ प्रॉब्लम को यू हैव टू ब्रेक इट अप। जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स एक हवा बन गया है कि ये हमसे नहीं होगा। लीनियर इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक हो, चाहे कोई भी हो, इट इज टर्म्ड एज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। पहले ही कभी कभी आपका मेंटोर या टीचर अगर बोल देता है दिस इज अ वेरी टफ टॉपिक, ये समझने में बड़ा मुश्किल है, तो पहले ही आपका एक माइंडसेट हो गया, हाँ भाई वर्ड प्रॉब्लम्स है, ये बहुत टफ है, इसको छोड़ देते हैं। सो वर्ड प्रॉब्लम्स अगर हम कई, मैंने सुना हुआ है कई टीचर से, कई स्पेशली एट द मिडिल स्कूल एंड एलिमेंट्री लेवल, उसको स्टोरी सम्स बोल देते हैं। स्टोरी सम्स बोलने से क्या हो गया है, एक अलग उसको सॉफ्टन हो गया। बेसिकली हम बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम और स्टोरी सम्स, उसमें बड़ा जमीन आसमान का अंतर आ गया इन टर्म्स ऑफ द माइंडसेट फॉर द चाइल्ड। भाई स्टोरी सम्स है, ये मैंने सुना था फ्रॉम माय बेटर हाफ एक्चुअली, बिकॉज शी इज डीलिंग विद मिडिल स्कूल एंड प्राइमरी किड्स। तो मैंने कहा हाँ ये बड़ा अच्छा टर्म आपने चुना है। वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, स्टोरीज हमें ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ये फादर है, ये सन है, तो 5 साल बाद ऐसा हुआ, 10 साल बाद, यू नो, सो ब्रेक इट डाउन। हो सकता है द चाइल्ड इज अ विजुअल लर्नर, नॉट एन ऑडिटरी लर्नर, तो इसमें क्या है, विजुअलाइज करने के लिए ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ओके, दिस इज व्हाट हैज हैपेंड 5 years बैक, द फादर्स एज वाज एक्स, सन्स एज वाज वाई। 5 years लेटर दोनों में 5 साल जोड़ देंगे, x+5 y+5, द फादर्स एज इज ट्वाइस द सन्स एज, यू नो, एंड देन ग्रेजुअली जब हम ब्रेक करते हैं उस प्रॉब्लम को, आसान लगेगा। So don't think in terms of the totality of the problem. Think in term, break it down into smaller parts. उसको visualize करो, कि स्टोरी बनाओ, क्योंकि कई बच्चे क्या होता है जब ब्रेक करते हैं into steps, then they are able to understand. Okay, so this is one tactic that can be used in word problems and questions which have lots of parts. Never shy to get help. आजकल मैंने कहा हमारे टाइम में तो help was not there. You know, our parents were not that efficient in, you know, teaching us up to higher level mathematics. There were limitations of, you know, we could of finance, where we could not attend very expensive classes, and reference books was a luxury, because that time also there used to be one or two, but very expensive. So we used to study only NCERT and what is taught in the school. But in spite of that, as I said again and again, we got very good marks. The reason is that we always used to seek help. हेल्प लेने से कभी भी कतराना नहीं चाहिए। यू शुड नेवर फील शाई टू टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर्स। आप स्कूल के टीचर से पूछेंगे, कभी भी वो मना नहीं करेंगे किसी भी चीज पे। आप उनसे रियल में भी, जैसे क्लासरूम होता है, हाथ उठाने में आपको शर्म आती है तो व्हाट्सएप करिए, आफ्टर स्कूल मिलिए इंडिविजुअली, और व्हाटएवर इज कन्वीनियंट टू द टीचर, एंड यू कैन वर्क आउट थिंग्स। आपके पास मेंटोर्स होंगे, आपके कोई रिलेटिव होगा फैमिली में, या आपके कोई बड़ा भाई या बहन है, और अ पर्सन हु इज योर फ्रेंड हु इज वेरी गुड इन मैथ्स, टेक हेल्प। अगर आप किसी भी व्यक्ति से हेल्प नहीं लेना चाहते हैं, ऑनलाइन इतना मटेरियल हमारे पास है। अभी देखिए जैसे कि
आई एम गिविंग लॉट ऑफ फ्री ऑनलाइन क्लासेस, हमारे मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स जो 9th-10th के पढ़े हुए हैं, बट इन स्पाइट ऑफ thousands ऑफ स्टूडेंट्स हैव एक्चुअली एनरोल्ड फॉर दीज क्लासेस, एनरोलमेंट तो है, लेकिन जब हम वीडियो पोस्ट करते हैं देखता कोई नहीं है. So why is that? Because the laziness of the part of the student. The teacher is making the effort to create free videos. देखिए वो भी अपना टाइम निकाल रहा है. I have to take out time every day to make a half an hour video or 1 hour video. लेकिन जब बच्चा उसको देख ही नहीं रहा तो फिर जो टीचर सोचता है भाई किसके लिए कर रहे हैं ये सब. Because see that's what happens. There is lot of online systems. I'm not talking about myself. There are lot of online content इतने अच्छे जैसे Khan Academy हो गया. आप गूगल सर्च करेंगे, देयर आर एन नंबर ऑफ वीडियोस, आपको हिंदी में भी मिलेंगे, इंग्लिश में भी मिलेंगे, आपके रीजनल लैंग्वेजेस में मिलेंगे. देयर विल बी एन नंबर ऑफ वीडियोस हु आर गिविंग दिस ऑनलाइन कंटेंट. आपको कोई भी चीज समझ नहीं आ रही है, आपको यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, गूगल सर्च करेंगे आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा, एवरीथिंग इज देयर. बुक्स तो आपके पास है ही, रेफरेंस बुक्स, अनगिनत रेफरेंस बुक्स आर देयर इन द मार्केट. यू कैन टेक एनी बुक एंड यू विल गेट द सॉल्यूशंस ऑफ दिस. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कोई एक्सरसाइज, आप ऑनलाइन वीडियोस देख सकते हैं, आप इन बुक से सोल्यूशन देख सकते हैं, और फिर आप इसको अपने आप करने की कोशिश करेंगे जब तक खुद नहीं करेंगे. बिकॉज सी बहुत से पेरेंट्स आते हैं, ये तो 4 घंटे पढ़ता है, 5 घंटे पढ़ता है, इसका ट्यूशन भी लगा रखा है, फिर भी इसके मार्क्स नहीं आ रहे. व्हाट आर दे डूइंग विद द ट्यूटर इज आल्सो सॉल्विंग, टीचर इज आल्सो सॉल्विंग, बट आर यू सॉल्विंग? दैट इज द क्वेश्चन. ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. टीचर भी सॉल्व कर रहा है, ट्यूटर भी सॉल्व कर रहा है, लेकिन क्या आप इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हो? दैट इज वेयर द efficiency or the marks will come. जब तक आप सुन रहे हो, टीचर बता रहा है, ट्यूटर बता रहा है, you are doing it by listening to what is happening in the class, right? But you are not doing that individually. You are not doing it independently. तो independently self study जब तक नहीं करोगे तो उसमें it will not get converted into marks. It's very important that आप जितने भी रिसोर्सेज आपके पास हैं वो तो ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है. आप जितना सप्लीमेंट कर सकते हो अपने क्लासरूम टीचिंग में, इट इज वेरी गुड. आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज आपको खुद भी टाइम निकालना है. 6 घंटे कहीं पे जाके प्रैक्टिस करना, और खुद 1-2 घंटे खुद आप एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने में जमीन आसमान का फर्क है. दैट विल गिव यू रिजल्ट्स. आप 1 घंटा खुद जो आपने रिकलेक्ट करेंगे कि मेरे टीचर ने ये सिखाया, मेरे ऑनलाइन गुरु ने ये समझाया, मेरे मेंटर ने ये समझाया, मेरे दोस्त ने समझाया, ठीक है अब मैं ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता हूं, तो क्या मेरे से ये हो पा रही हैं? एम आई एबल टू डू दीज क्वेश्चंस ऑन माय ओन? देन यस, इट मेक्स अ डिफरेंस, राइट? सो ऑलवेज गेट हेल्प इफ यू आर स्टक. आपको विजुअलाइज करना है, वॉट एवर इज योर प्रॉब्लम, यू हैव टू विजुअलाइज दैट एंड स्टे पॉजिटिव एंड कनेक्ट टू रियल लाइफ. द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी एजुकेटर्स व्हेन वी आर गोइंग टू द क्लासरूम, सर ये यूज कहाँ होता है रियल लाइफ में? ये कभी मैथ्स तो, in fact one parent came and asked me, I was surprised, sir एक बच्चे को बाहर भेज दिया, सर आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, हमने इतनी सारी ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ ली लेकिन आज तक हमने यूज नहीं किया. सो द पेरेंट themselves are not able to explain to the student भाई ये मैथ्स कहाँ यूज होता है. सो आप घर में व्हाइट वॉश होता है, वो एस्टिमेट लेने आता है भाई इतना सरफेस एरिया है, तो क्या कभी अपने बच्चों से बोला है कि भाई मेजर दी perimeter or measure the area of the walls of your house? That is a practical life. और इसकी कॉस्टिंग निकालो, ठीक है, 10 पेंट इज 1 लीटर, हमें कितना लीटर पेंट लगेगा इतना एरिया को पेंट करने में, यू नो. सो दीज आर प्रैक्टिकल थिंग्स. ये तो मैं एक स्मॉल एग्जांपल दे रहा हूँ. देयर आर इन्यूमरेबल एग्जांपल. आप आर्किटेक्चर देखेंगे, इंजीनियरिंग देखेंगे, एवरीथिंग इज बिल्ट ऑन मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स इज ऑल अराउंड अस. तो इसका तो एक अलग ही लेक्चर बन जाएगा कि एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन रियल लाइफ. तो जैसे हम हमारे बॉडी पार्ट्स को देखते हैं, एवरीथिंग इज इन द गोल्डन रेशियो. आप ताजमहल देखेंगे और फ्लावर पेटल्स देखेंगे, ये सब वी कैन रिलेटेड टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस. द हनी बी कोम, यू नो. सो जो अलग अलग एग्जाम्पल रियल लाइफ के बहुत सारे दे सकते हैं. सो एज एजुकेटर्स, एज स्टूडेंट्स, वी ट्राई टू कनेक्ट टू रियल लाइफ. तो इससे बहुत हो जाए. शैडो की लेंथ निकाल के हम हाइट ऑफ बिल्डिंग्स निकाल सकते हैं, हाइट ऑफ ट्री. माउंट एवरेस्ट का हाइट किसी ने कोई टेप लेके तो चढ़ा नहीं. देयर आर, सो इट इज यूज्ड बाय फाइंडिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन. तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो गए, सर्कल्स हो गए, ट्राइंगल्स हो गई, इतनी सारी एप्लीकेशंस. तो मैथ्स में एक इतना अच्छा सब्जेक्ट है ये कि इसका एप्लीकेशन आपको हर जगह ही मिलेगा. देयर कैन नॉट बी पार्ट ऑफ लाइफ वेयर मैथमेटिक्स इज नॉट अप्लाइड. एवरीवेयर मैथ्स इज देयर. द बेसिक ऑपरेशंस जो आप करते हो, आप दुकान में जाते हो, ट्रांजैक्शंस होती हैं, आप बैंक में मनी डिपॉजिट करते हो,
देयर इज प्लस माइनस, वो ऑपरेशन तो होती हैं। बाकी आप स्पेशलाइज फील्ड्स में जाओगे ऑफ मैथमेटिक्स, there are n number of examples where mathematics is used in. So every topic that you are studying, you need to know, you connect it to real life. अच्छा ये मैंने पढ़ा था, इसको मैं ये अब ये यूज कर सकता हूँ. If you are able to connect that, then you are growing 10 times in wisdom. एक तो वो होता है कि भाई आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, और एक होता है कि आप अप्लाई कैसे करोगे वो पढ़ रहे हो. सो आई कैन गिव यू n नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स. एक अगर आप आर्ट इंटीग्रेशन का वीडियो देखोगे मेरे चैनल पे है, तो मेरा एक स्टूडेंट है जो आर्किटेक्ट है, एंड ही इज वन ऑफ द रिनाउंड आर्किटेक्ट्स नाउ. वो देखो सिमिलर ट्रायंगल्स या के बेसिस पे या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बेसिस पे क्या आर्किटेक्चर ऐसे डिजाइन्स क्रिएट किए हैं जो दुनिया में आज तक किसी ने क्रिएट नहीं किए. हिज नेम इज अंकन मित्रा. आप अगर गूगल सर्च करोगे तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट ही हैज डन अक्रॉस द वर्ल्ड. यूरोप में जाता है, एशिया के डिफरेंट कंट्रीज में जाता है, यूएस में जाता है, ऑस्ट्रेलिया में जाता है. शायद ऐसे कोई कंट्री ही नहीं है जहाँ पे वो गया नहीं है, वो जहाँ पे वो ऐसे डिजाइन्स के लिए पॉपुलर है जो आज तक कभी बने ही नहीं है. एंड इट इज ऑल बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पाइरल्स मैथमेटिक्स. तो वो उसने बोला भाई सर जितनी भी मैथ सीखी है हमने क्लास में, हमने अप्लाई कर दिया है. सो ही हैज कंबाइंड आर्किटेक्चर एंड ओरिगेमी. सो जो पेपर फोल्डिंग से स्टार्ट किया था, अब वो स्टील स्ट्रक्चर्स के साथ बनाता है. सो आप गूगल सर्च करेंगे या मेरा वीडियो देखेंगे आर्ट इंटीग्रेशन इन मैथमेटिक्स, तो उसमें हम यू कैन सी द अमेजिंग वर्क दैट ही हैज डन. सो दैट इज कॉल्ड कनेक्टिंग टू रियल लाइफ. तो वी हैव टू स्टे पॉजिटिव. अनलेस वी स्टे पॉजिटिव कुछ नहीं होने वाला. हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा. वी हैव टू रीच आउट टू आवर मेंटर्स. इतने सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, उन सबका हमें यूज करना है, राइट. सो आगे बढ़ते हैं. सो व्हाट एल्स टू बी डन? बी पेशेंट एंड स्टे फोकस्ड. पेशेंस एक बहुत बड़ी चीज है. ये नहीं है कि ये नहीं हो रहा सर, ये नहीं हो रहा हमसे, ये नहीं होगा, ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है, मैं नहीं कर रहा. ऐसे नहीं होता है. एक बार नहीं होगा, दो बार नहीं होगा, तीन बार नहीं होगा, चौथी बार होगा. तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट आपको जैसे बोलते हैं ना, लगे रहो मुन्ना भाई, वही वाली बात हो गई है यहाँ पे. उस सम को आप करें करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे, तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू विल फाइंड इट इजी. देखेंगे कई बार जो मैकेनिकल काम करते हैं वो कितने जल्दी जल्दी कर लेते हैं, यू नो. तो बिकॉज ही इज डूइंग दैट सेम थिंग फॉर डोंकीज ईयर. 1 साल कर रहा है, 2 साल कर रहा है, 3 साल. तो उसके लिए जो है बाएं हाथ का खेल है. वो हर चीज जो है 2 मिनट में कर देता है. सो बिकॉज ही इज डूइंग द सेम थिंग. आपने देखा होगा इंस्टाग्राम में वीडियोस आते हैं हाउ पीपल आर कटिंग अनियंस फॉर एग्जाम्पल. अगर जिसने कभी काटा ही नहीं है प्याज, वो तो बैठ के घंटा भर में आंसू भी निकलेंगे, ठीक से कटेगा नहीं. बट देयर विल बी समवन who will do that slicing in a matter of seconds, and that also so beautifully and finely. तो वही चीज होती है मैथमेटिक्स के साथ. आपको पेशेंस के साथ वही सब बार बार रिपीट करना है. रेपिटेशन रेपिटेशन. ये नहीं कि एक बार सुन लिया हो गया, मुझे सब आता है, ऐसा नहीं होता है. यू हैव टू लिसन, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू रीडू इट. 2 महीने बाद, 3 महीने बाद हो सकता है दैट्स गोज आउट ऑफ योर शॉर्ट टर्म मेमोरी, फिर रिवाइज करना है. सो दैट इज व्हाट इज वी से, एक प्लान बनाना है, ऑर्गेनाइज करना. नोट्स बनाने, वेरी इंपॉर्टेंट. एक नोट मेकिंग का जो कल्चर था दैट इज स्लोली डिसअपियरिंग. व्हेन योर टीचर इज टेकिंग क्लासेस, हाउ मेनी ऑफ यू आर मेकिंग नोट्स? कई बार ये पूछते हैं बच्चे, सर ये लिखना है, ये लिखना है, ये एग्जाम में आएगा. इट्स नॉट लाइक दैट. एवरीथिंग दैट इज स्पोकन ऑन अ प्लेटफॉर्म, ऑन फ्रॉम अ पेडेस्टल बाय अ टीचर और योर मेंटर हैज टू बी टेकन डाउन, राइट. क्योंकि यू नो देयर विल बी समथिंग टू कैरी बैक होम. हर दिन आप स्कूल जाते हो, हर दिन आप क्लास के लिए जाते हो, यू शुड लर्न समथिंग न्यू. ऐसा कभी भी कोई दिन नहीं होना चाहिए कि आप क्लास गए और कुछ नहीं सीख के आए बिकॉज यू आर टॉकिंग और यू आर डिस्ट्रैक्टेड और टुडे यू आर नॉट इन अ मूड. ऐसे कभी नहीं होना चाहिए. सो गेट इनटू द हैबिट ऑफ मेकिंग नोट्स. ठीक है. नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. वो अपने हाथों से लिखना है. ये नहीं कि अरे ये तो रेफरेंस बुक में है, ये तो यूट्यूब चैनल में है, ये तो मैंने किया हुआ है, ये फलाना ढिमकाना जो है, यू हैव एन नंबर ऑफ एक्सक्यूजेस. सो ऑलवेज टेक नोट्स. दूसरी बात है फॉर्मूलाज. मैथ्स जो है बिना फॉर्मूलेज के नहीं कर सकते. सरफेस एरिया वॉल्यूम या कोई भी चैप्टर आप लेते हो, इतने सारे वॉल्यूम एरिया या अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखो, ट्रिग्नोमेट्री देखो, तो बहुत फॉर्मूलेज होते. तो फॉर्मूलेज के बिना तो आप कर ही नहीं सकते. तो आप 5 घंटे पढ़ रहे हो, फॉर्मूला देख के क्वेश्चंस कर रहे हो, क्या फायदा हुआ? एग्जाम में कौन बताएगा आपको फॉर्मूला? नोबडी, राइट. सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू आर मेमोराइजिंग द फॉर्मूलाज. फॉर्मूला याद नहीं हो रहे तो लिख के करिए. लिखने से आजकल के बच्चे बड़े कतराते हैं. आई हैव सीन व्हेन आई टेल देम टू राइट डाउन द फॉर्मूलेज, भाई एक बार नहीं हो रहा, 10 बार लिखो. पहले पहले देखा नहीं था जब पनिशमेंट क्या होता था, भाई एक चीज जो है 500 बार लिख के लाओ.
फिर वो 500 बार लिखेगा वो फॉर्मूला तो याद रहेगा उसको. सो ऑल्दो इट वाज अ पनिशमेंट, इट वाज अ स्वीट पनिशमेंट, आपको फॉर्मूले याद होते थे. आजकल तो सब खत्म हो गया है. सो यू कांट गिव दी सॉर्ट ऑफ थिंग्स. वो तो हैरेसमेंट केस लगा देंगे हम पे कि बच्चे को देखो 500 बार लिखवा दिया कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच. तो लेकिन वो ये नहीं समझते भाई वो उसको याद हो गया. So there is no need for anyone to punish you. What I am saying is I just give you an example कि आप repeatedly कोई चीज आप बोलते हो लिखते हो तो वो आपके दिमाग में बैठ जाता है. So always memorize the formulas by writing down, by speaking out loud, है ना. वो बोलते थे मिरर के सामने जाके प्रैक्टिस करो, लाउडली बोलो इंग्लिश में, especially when you are going for debates or extempore. They always ask you to speak loud in front of a mirror so that they come to know your body language, your posture, how you speak. तो यही चीज मैथ्स में भी है. You speak out the formulas loudly, you write it down and it's going to help out. Because ये चीजें फिर याद रहेंगी जब आप लाउडली कोई चीज बोलते हो, जब आप लिखते हो, ये दिमाग में आपके ज्यादा बैठेगा. सो यू विल नॉट फॉरगेट द फॉर्मुलाज. वंस यू फॉरगेट द फॉर्मुलाज मींस वो क्वेश्चन आपका 4 मार्क 5 मार्क वो तो गए, खत्म हो गया. थियरम्स, कई बार मैंने इतना गुस्सा आता है जब पेपर चेकिंग होता है और बच्चे थियरम छोड़ देते हैं. भाई वो तो शॉर्ट है. और आजकल के एनसीईआरटी में तो इतने कम थियरम्स आ रहे हैं, एग्जाम में आपको पता है शॉर्ट है भाई, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आने वाला है, फिर भी ऐसे बच्चे होते हैं जिसने नहीं किया. अभी इवैल्यूएशन में गया था भाई, इतना गुस्सा आ जाता है भाई ये जब थ्योरम ही नहीं किया है. या अभी स्कूल के जो चेकिंग करते हैं, you feel so angry that the child, we have said repeatedly in the class भाई ये कर लो, ये आएगा, थ्योरम इंपॉर्टेंट है, फिर भी नहीं करते. So whose fault is this? This is definitely the fault of the child because the child has taken it very casually. तो ऐसा में कोई फॉल्ट फाइंडिंग नहीं कर रहा कि भाई टीचर्स अच्छे हैं बच्चे गलत हैं, ऐसा कुछ नहीं है. बट आई वांट टू मोटिवेट एवरी स्टूडेंट हु इज लिसनिंग टू दिस वीडियो. भाई अपने जब आप टीचर बोलते हैं कि ये चीज इंपॉर्टेंट है तो वो इंपॉर्टेंट है, उसको तो कम से कम कर लिया करो. बिकॉज थ्योरम्स आर स्कोरिंग. फॉर्मूले याद करो, थ्योरम कर लो, बच्चा पास हो जाएगा, इतना तो है. 33% यू विल गेट. अगर वही बच्चा फेल होता है जिसको थ्योरम्स और फॉर्मूले नहीं आते, क्योंकि हाथ पैर मार के 33% तो वैसे ही आ जाते हैं. सो इफ यू डोंट नो द फॉर्मूलेज एंड यू हैव नॉट स्टडीड द थ्योरम्स, तो फिर तो भाई तो इट्स गोइंग टू बी अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑफ व्हाट आर यू गोइंग टू डू. सो ये चीज जो है इम्पोर्टेंट है, ये आपको करना है. देन रिव्यू. आपको ये नहीं कि मैंने कर लिया अब मैं इसको आगे नहीं करूंगा, ऐसे नहीं होना चाहिए. रिव्यू करना है. आप पढ़ने का स्टाइल सबका अलग होता है. आप इंडिविजुअली भी पढ़ सकते हो, स्टडी ग्रुप बना के भी. ये नहीं कि स्टडी ग्रुप बना लिया और गप्पे मार रहे हो और टाइम वेस्ट कर रहे हो, ऐसे नहीं. यू विल फाइंड पीपल हु आर रियली कमिंग आउट वेल इन स्टडी ग्रुप्स. आपके पास 4 फ्रेंड्स हैं जो मिल के काम पढ़ना चाहते हैं, तो एनकरेज दैट. बट इट हैज टू बी इन अ पॉजिटिव वे. ये नहीं कि वही मैं ऐसा टाइम वेस्टिंग नहीं होना चाहिए. इंडिविजुअली अगर आप परफॉर्म ज्यादा अच्छा करते हो तो इंडिविजुअली पढ़ो. ग्रुप्स में पढ़ना चाहते हो तो वैसे करो, है ना. कई वो पेरेंट्स इंसिस्ट करते हैं भाई सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो सब कुछ ठीक हो जाएगा. यू मे नॉट लाइक दैट बिकॉज सबका बॉडी क्लॉक अलग होता है. सो नेवर इंसिस्ट कि भाई 4 बजे पढ़ो. लेट गिव फ्रीडम टू द चिल्ड्रन. ठीक है, इसमें तो मैं चिल्ड्रन, आई एम सपोर्टिंग द स्टूडेंट्स that allow the children to study at their own pace and at their own time. Don't set them because their body clock may be different from yours. 4 बजे आप उठ के पढ़ सकते हो तो बहुत बड़ी अच्छी बात है. दैट इज क्योंकि the old our parents and our forefathers always used to say get up early in the morning. लेकिन I know the difficulty because I as a student found it very difficult. हम तो रात को बैठ के पढ़ते थे भाई 10 से 11 12 1 बजे, because सब सो जाते थे. दैट वाज अ पीसफुल टाइम. तो अदरवाइज घर में आना जाना टिंग टोंग सब्जी वाला ये वो, दिस इज द प्रॉब्लम व्हेन वी वर स्मॉल किड्स. गेस्ट आते रहते थे या कोई कोई कुछ आ जाता था, ऑलवेज डिस्टर्बेंस. सो वी यूज्ड टू स्टडी फ्रॉम 10 o'clock to 1 o'clock. कोई डिस्टर्बेंस नहीं, सब सोए हुए हैं और हम हमें अपना काम कर रहे हैं. सो अगर आपको सुबह या रात जैसे भी हो टाइम निकालो, इंडिविजुअली पढ़ो ग्रुप में पढ़ो, वो फिर आपको डिसाइड करना है. टाइमिंग आप डिसाइड करो, लेकिन पढ़ना जरूर है. ये टेक्नोलॉजी यूज करके, हमारे बचपन में तो था नहीं ये सब, बट नाउ देयर इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी. ऐसे कितने एप्स आए हैं, आई डोंट वांट टू नेम एनी स्पेसिफिक एप्स, लेकिन हमारे पास इतने एप्स है जो हमें सेल्फ टेस्टिंग देती है, या आप अपने टीचर या मेंटर को देंगे वो भी आपको टेस्ट पेपर दे देंगे. तो यूज द टेक्नोलॉजी दैट इज अवेलेबल टू यू, देन यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड गेट बेटर रिजल्ट्स. अब ये नहीं कि आप सुबह से रात तक पढ़ के यू आप भोंदू बन गए बिल्कुल. All work and no play makes Jack a dull boy. This is a very famous proverb.
So if you're going to take no breaks, you're going to study from morning till evening, फिर तो then you are going to, that's a warning sign that you are going to get sick. So we don't want any sick students. We want healthy students. So you should take sufficient breaks. You should have vegetables, fruits, have sufficient exposure to sunlight. Park में जाके खेलिए, talk with friends, socialize. All this should be there, and not that at the cost of studying you have left your social life and your personality is not growing. That we don't want. We want our students to be healthy individuals who are good in academics and good in sports, good in speaking, and good in all the skills. जितने आप skills acquire करोगे life में उतना अच्छा है. The academics is important because ultimately college admission हो गया, ये सब जो है connected होता है. हमें marks चाहिए होते हैं to go to the next level. This is not America, where skill से हम बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं. Unfortunately, our system is growing, but it will take a long number of years. जैसे NEP आ रहा है, that's something very positive, where the child can choose subjects. अभी तो फिलहाल आपका जो रूट है वो ये है कि बेसिक पढ़ाई तो चाहिए ही हमें, बिकॉज वी हैव टू पास 10th, वी हैव टू गो टू 12th, वी हैव टू गो टू कॉलेज, तब जाके हमें नौकरी मिलती है. लेकिन हम अमेरिकन कंपनीज देखेंगे, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, आपके स्किल के बेसिस पे आप 10th पास भी हो सकते हो, आपकी सैलरी 5 लाख हो सकती है इफ यू नो हाउ टू डू कोडिंग एंड यू आर वेरी गुड एट इट. एंड दैट्स हाउ ऑल दीज मार्क ज़करबर्ग, बिल गेट्स, ये सब अपने स्कूल टाइम से ही कोडिंग और ऐसे स्किल्स इन्होंने एक्वायर किए. आप जैक मा को देख लो चाइना में, या इतने सारे जो अमेजन के जेफ बेजोस को देख लो, दे ऑल स्टार्टेड व्हेन दे वर वेरी यंग. सो अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में ये अभी स्टार्ट हो ही रहा है. वी आर पॉजिटिव अबाउट द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इन द नेक्स्ट 4-5 years. व्हेन NEP गेट्स इम्प्लीमेंटेड हमारे पास ज्यादा चॉइसेस आएंगे. लेकिन अभी फिलहाल जो है आप ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं पढ़ाई कर रहा, बिकॉज अल्टीमेटली देन योर पढ़ाई आपकी रुक जाएगी. So you need to understand the situation and study accordingly so that you don't have a bleak future. आपको अपना फ्यूचर ब्राइट बनाना है, आपके अपने पैरों पे खड़ा रहना है. So you should have sufficient knowledge about every skill which will help you in succeeding in your respective careers. So technology का use करिए, बहुत पढ़िए, but at the same time develop your skills, take sufficient breaks and excel in whatever you are doing. So I just want to wish you all the best. आप अपने आप को चैलेंज करेंगे, let the magic begin. Maths is magical. अगर आप इसको लव करते, there is nothing to me. देखो ऐसा है, मैं तो हमेशा सोचता हूँ इतने सारे सब्जेक्ट्स में, अगेन विदाउट नेमिंग द सब्जेक्ट, वो क्रैम करते रहते हैं, रोड लर्निंग होता है. मैथ्स में कहाँ है? यू जस्ट कैन एंजॉय म्यूजिक एंड डू द सम्स. आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, वहां पे भी आप मैथ्स कर सकते हो. So what is going to happen is that once you start loving the subject, then only that results are going to come. आप पहले से ही उसको हेट करोगे कि नहीं मुझे मैथ्स अच्छा नहीं लगता, आई एम नॉट गोइंग टू स्टडी मैथ्स, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? कुछ नहीं होने वाला. सो स्टार्ट लविंग द सब्जेक्ट, start challenging yourself, and then you will see the magic happening. Magic is going to happen when you are going to start loving the subject and challenge yourselves. So on this note, I just want to conclude by saying that always find your learning style. ठीक है, आपका लर्निंग स्टाइल सबसे अलग हो सकता है, सेम हो सकता है. तो बहुत से लोग आपको बहुत से ज्ञान देते हैं, दैट इज ओके, लेकिन आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपको आइडेंटिफाई करना है. व्हाट इज योर लर्निंग स्टाइल? यू हैव टू आइडेंटिफाई. यू शुड नॉट फॉलो ब्लाइंडली व्हाट अदर्स आर सेइंग. ये बुक में ऐसा लिखा हुआ है तो हम ऐसे करेंगे, नहीं. ये चैनल ने ऐसा बताया, नहीं. या ये मेरे पेरेंट्स ने बताया, ये मेरे टीचर ने बताया, तो हो सकता वो खाओ. हाँ, रोज बादाम खाने से कोई 100% नहीं आता है. इट इज गोइंग टू हेल्प यू, राइट? बट द लर्निंग स्टाइल दैट यू हैव टू डेवलप इज यू हैव टू डिस्कवर योरसेल्फ. सेल्फ डिस्कवरी करेंगे, किस टाइम पे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपको YouTube से पढ़ना है या लाइव क्लासेस से पढ़ना है, या आप रेफरेंस बुक से पढ़ोगे, या आप खुद ट्राई करोगे. ये सब आपको खुद डिसाइड करना है. कोई आपके लिए नहीं बता सकता, कोई आपके लिए इसमें गाइड नहीं कर सकता. फाइंड योर ओन लर्निंग स्टाइल, स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल एंड यू आर गोइंग टू अचीव इट. फोकस ही नहीं है तो कुछ नहीं होगा. तीर निशाने पे तब लगता है जब आप निशाना आपके सामने आप देख रहे हो उस पर. अदरवाइज क्या होगा कि अरे जो चल रहा है वो सही है, देन यू विल रीच नोवेयर. इट्स लाइक आप एक बोट पे ट्रैवल कर रहे हो, जहां हवा का डायरेक्शन है वहां पे जा रहे हो. यू विल रीच अननोन प्लेसेस, अननोन डेस्टिनेशन. अगर आप फोकस्ड हो कि मुझे यहाँ से यहाँ पहुंचना है,
दिस इज माई वेर आई एम ए एंड दिस इज पॉइंट बी, मुझे यहीं फोकस होगा तभी कुछ होगा। आपको एक टारगेट रखना है कि आई एम गोइंग टू अचीव दिस, देन ओनली इट्स गोइंग टू हैपन। स्टे मोटिवेटेड, एंड मोटिवेशन ऐसे नहीं कि भाई एक वीडियो देख लिया तो मैं बहुत मोटिवेटेड हो गया। एंड एज Zig Ziglar, who is a very famous philosopher, who said that, you know, motivation doesn't last. Some people always say motivation, आज देख लिया, आज मोटिवेटेड है भाई, सेमिनार सुन लिया, वीडियो सुन लिया, मोटिवेटेड है, कल वही कोई पढ़ाई नहीं हो रही। So he said that some people say motivation doesn't last. Well, neither does bathing. That's why we recommend it daily, isn't it? हम रोज नहाते क्यों हैं? क्योंकि एक बार नहाने से ये थोड़ी नहीं कि हम साफ हो गए, उस टाइम के लिए तो हम साफ हो गए, नेक्स्ट दिन अगेन व्हेन वी आर गोइंग टू वर्क, व्हेन वी आर गोइंग टू प्ले, अगेन वी आर गेटिंग डर्टी, अगेन वी नीड द bath. So motivation is required daily. So remain motivated, stay inspired, stay on track, and remain committed to your cause, and then you will definitely do well in maths. And don't fear it, love it, and I want to wish you all the best. And I'm sure that I have no hesitation in saying that if you are focused, stay motivated, and you want to achieve it, as I said, that you can bring a horse to the water but cannot force it to drink water. अगर आप करना चाहते हो, nobody in this world can stop you from scoring good marks in maths. So on this note, I want to wish you all the best. Stay inspired, stay motivated, and good luck to all. Thank you and good luck.